आप देख रहे हैं STV लद्दाख, आवाज घर घर की। आज के इस बुक रिलीज फंक्शन में आप तमाम हजरात का वेलकम करते हैं। आप सभी हजरात को बखूबी इल्म है कि यासीन अंसारी साहब कोई मोहताज नहीं है और ये शीना ज़बान के गरकशंद अस्तारे जिनकी दो किताबें आज जो है हमारे ऑनरेबल चेयरमैन चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल कारगिल के हाथ से जो है उनकी रहनुमाई तकरीब की जाएगी। सबसे पहले मैं यासीन अंसारी और इनके टीम से रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे मेहमान खुसूसी और इनके हमरा आए हुए मेहमानों का ट्रेडिशनल खिदमत से वेलकम करें। प्रोग्राम का शुरुआत कुरान मजीद की तिलावत से किया जाएगा। मैं प्रोग्राम की तिलावत के लिए स्टेज पे मदद करना चाहूँगा हमारे सईद साहब को कि आप आए और तिलावत की कुरान से हमारे सामने को मुस्तफीद करवाएं। اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى صدق الله العلي العظيم. बिला तमहीद मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाना चाहूँगा। आप सभी हजरात को बखूबी इल्म है कि आज यासीन अंसारी साहब की दो अहम किताबें बज़्मशीयाँ कलाम अंसारी जिनकी आज रहनुमाई तकरीब आप सबके सामने की जाएगी। आप सबको इल्म है कि ये दोनों किताबें बहुत अहमियत के हामिल है। बज़्मशीयाँ इसमें शीना मनकबत वगैरह जो है शामिल है और हमें उम्मीद है कि ये शीन दर्द कौमों के लिए जो है फ़ायदेमंद साबित होगी और हमारे आने वाले नौनाल बच्चे जो है इनसे ज़रूर फ़ायदा लेंगे और ये बेबहा ख़जाना जो किताब की शक्ल में हम तक यासीन अंसारी साहब ने पहुँचाया है ये जो है हमारे लिए बहुत एक मसबत जो है साबित होगा। मज़ीद हम सब जानते हैं कि किसी भी कौम को जिंदा उनकी नाम को ज़िंदा रखने के लिए जो है ज़बान एक अहमियत का हामिल है। कहा जाता है कि अगर किसी कौम को मिटाना है तो उनकी ज़बान को मिटाया जाए तो वो खुद ब खुद उन कौमों का नामो निशान ही मिट जाता है। वरना बकौल शायर हम सब जानते हैं तुम्हारी दास्तान भी न रहेगी दास्तानों में, यही हमारी हाल होगी। तो इसलिए मैं आज के इस दिन पर यासीन अंसारी साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। मज़ीद इस प्रोग्राम को
چلانے کے لیے، اس پروگرام کو منعقد کرنے کے لیے ہمارے ہومس اپنی ٹارگٹ جن کا ایک نمایاں کردار ہے، چاہے وہ کھیل کا میدان ہو، چاہے وہ تعلیم کا میدان ہو، یا زیادہ علاقوں میں بچوں کے لیے فاؤنڈر کا بھی مشکور ممنون ہے کہ آپ نے یاسین انصاری صاحب کی اس کتاب پر جو ہے نمایاں کردار ادا کیا ہے، اور امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی جو ہے آپ ایسے نمایاں کام انجام دیتے رہیں گے. شکریہ. پروگرام کو آگے نہ بڑھاتے ہوئے وارد ہوا ہے ان کے نام لینا چاہوں گا. آج کے ہمارے مہمان خصوصی چیف ایگزیکٹو کونسلر لداخ آٹونومس ڈیولپمنٹ کونسل کارگل ڈاکٹر جعفر صاحب جو ہے ہمارے چیف ایگزیکٹو چیف گیسٹ ہے، اور گیسٹ آف آنر کے جو فرائض انجام دے رہے ہیں وہ ڈاکٹر لیاقت علی چیف میڈیکل آفیسر کارگل. مزید ان کے ہمراہ بہت سارے شعراء حضرات جن کا اس جو پدم شری ایوارڈ ہے وہ بھی ہمارے سامنے موجود ہے. سعید ہادی صاحب، امجد بڑگامی صاحب، ناصر سعید رضوی صاحب، صادق حدیثی صاحب، ڈاکٹر ریاض، اور اس کے علاوہ علی آخون پریزیڈنٹ ہوٹل ایسوسیشن ہے، حاجی عنایت جو ہے چیف انسپیکٹر فوڈ سپلائز کے، وہ بھی ہمارے اس موقع پہ جو ہے یہاں پہ وارد ہوئے ہیں. غلام مصطفیٰ پریزیڈنٹ ٹیکسی یونین کارگل، فاؤنڈر ہومس افیلیٹ آرگنائزیشن الطاف حسین، اور ان کے ہمراہ باقی شعراء حضرات اور اسکولی طلباء بھی جو ہے موجود ہیں. مزید میں آج کے پروگرام کو آگے میں I would like to request on the stage our today's chief guest, Dr. Jafar Saab and Dr. Liaquat Ali, Chief Medical Officer, accompanied with other dignitaries to come on the stage for book release function. اور یہ خوشی کا مقام ہے کہ ہمارے آج کے مہمان آنریبل چیئرمین چیف ایگزیکٹو کونسلر لداخ آٹونومس ڈیولپمنٹ کونسل کے ہاتھوں اس کتاب کا رسم اجرائے تقریب جو یہاں پہ منعقد ہو رہی ہے، یہاں کلام وغیرہ جو ہے اس پہ لکھے گئے ہیں. بات میں پریزیڈنٹ ہوٹل ایسوسیشن کارگل آخون علی صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اسٹیج پہ آئیں اور آج کے اس دن تقریب کے موقع پر آپ اپنے ذریعہ خیالات سے نوازیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آنریبل چیف گیسٹ جناب سی ڈاکٹر جعفر اخون صاحب، ہمارے CMO جناب ڈاکٹر لیاقت صاحب، کونسلر الطاف صاحب، باقی یہاں پہ بیٹھے ہوئے معزز صاحبین، بڑے بڑے ہستیاں آج یہاں پہ ہمارے بیچ، جن کی تعارف کرنا ہمارے شعبے کو مطلب اس فیلڈ سے ہم تو ہے نہیں. میں تو انصاری صاحب کے کہنے پہ آج ان کے کتاب کے جو اوپننگ سیرمنی میں ہم آئے ہیں، تو انصاری صاحب نے ہمیں انوائٹ کیا. سب سے پہلے میں انہیں بہت بہت شکریہ کہ اس منچ پہ ہمیں بھی یاد کیا. آپ سب کو بخوبی علم ہے کہ انصاری صاحب نے بھی اس فون کے لیے ہم نے کلاموں سے
جیسے انصاری کے کلام انصاری کے سے ہم سب کو یا سوشل میڈیا کے تھرو یا کسی بھی اور کسی پلیٹ فارم کے تھرو یہ اپنے جذباتوں سے ہمارے کرگل کے اتہاس کو ہمارے کلچر کو بڑھاوا دینے میں ہمیشہ آگے رہا ہے. اس سلسلے میں اپنے طرف سے ہمارے ہوٹل اسٹیشن کی طرف سے ان کا حوصلہ افزائی کے لیے آج یہاں پہ آئے ہیں اور ہمارا ایک چھوٹا سا تعاون ان کے لیے میں اپنے طرف سے 30,000 روپے کا انہیں ہم اپنا چھوٹا سا رقم دے کے انہوں نے بھی کافی اپنی پبلشنگ میں یا ان سب میں جو ان کو تھوڑا مدد ہمارے طرف سے بھی ہو جائے. انشاءاللہ ہمیں امید ہے آگے بھی اس طرح کی کتابیں لکھتے رہیں گے. ہمارے کلچر کو لے کے ہمارے ثقافت کو لے کے اس کو بڑھانے کی ہمیں بہت ضرورت ہے. کیونکہ میں خود سوچ رہا ہوں آج کل مجھے بھی اپنا پورا پرکی ہو یا بلتی ہو شینا ہو جو میں جہاں سے بلونگ کرتا ہوں مجھے تو اپنا زبان مطلب پراپر 1 2 3 کر کے 1 2 3 4 کر کے مجھے آتا ہے, لیکن مجھے چکنی سم کر کے جو ہے وہ سارا جو ہے بھول چکا ہے. اس سے بہتر ان کتابوں میں مہربانی اپنا ایسا بھی کتاب رکھے کہ ان کا کچھ ونٹر میں ہو, چاہے جسٹ ٹائم پہ بھی آپ لوگوں کو کوئی موقع ملتا ہو. ہم سب نے آپ سب کا جیسے عنایت اللہ رئیس صاحب کا, اس میں ہمارے اخون بشرت صاحب ہیں, صادق صاحب ہیں, آغا صاحب ہیں, آپ سبوں کا میں شاعری سنتے بھی بیٹھتا ہوں. جیسے کلچر اکیڈمی میں کلچرل کے تھرو یا جہاں بھی آپ سب پروگرام رکھتے ہیں, تو اسی طرح سے اسکول کے بچوں کے لیے جو ہمارے چھوٹے بچے ہیں, نوجوان بچے ہیں, ان کے لیے اگر ہمارے ادب پہ ہمارے کلچر پہ چاہے شینا ہو, بلتی ہو, پرکی ہو, ان سب میں اگر اس طرح کا کچھ کلاسز اگر ہم ونٹر میں دے پائے تو آپ سب کا بڑا مہربانی ہوں گے. تو میں سی سی صاحب سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمارے تھوڑا کلچر کو بڑھانے کے لیے اس میں ہمیں آپ لوگوں کی تعاون کی بہت ضرورت ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ. صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اسٹیج پہ آئے اور آج کے دن اس دن پر جو ہے اپنے ذریعے خیال سے نوازیں. عزت مآب آج کے چیف گیسٹ سی سی صاحب, سی ایم او صاحب اور کونسلر صاحب, ہمارے یہاں پہ معزز شخصیت اور پیارے بچوں, السلام علیکم وجلے. آج ہم سبھی کے لیے ایک نہایت ہی فخر کی بات ہے. انہیں پوائٹ سے ہم سبھی لوگوں کو جو ہے انکوریج کرتے ہیں, اپنی زبان کا ہمیں امپورٹنس دیتے ہیں. انہی کے آج بڑی 2 کتابیں آج یہاں پہ نشر ہوئے ہیں. اس کے لیے آج ہمیں یہاں پر دعوت دیا, ہمارے بچوں کو یہاں پر دعوت دیا. اس کے لیے ہم انصاری صاحب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں. اور کرگل ایک واحد ایسی ڈسٹرکٹ ہے جہاں پر 6-7 لینگویج بولی جاتی ہے. اس میں سے ایک لینگویج شینا بھی ہے, اور اسی لینگویج کو آج ہمارے انصاری صاحب جو ہے آگے لے کے آ رہے ہیں, اور اسی کی وجہ سے آج یہی لینگویج جو ہے ہر جگہ بولی جاتی ہے. اور اس کے لیے میں ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اور ہمارے سی سی صاحب سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں سر کہ ہمارے یہاں پر باقی اور سارے لینگویج ہے, ان لینگویجز کا امپورٹنس جو ہے ہمارے بچوں تک, ہماری سوسائٹی تک پہنچنے چاہیے سر. اور جہاں تک میری تعلق ہے, میں ایک کمپیوٹر انسٹیٹیوٹ میں چلاتا ہوں جہاں پہ میں بچوں کو پچھلے 10 سال سے کمپیوٹر میں پڑھا رہا ہوں. اور میں نے اپنے بچوں کے اندر ہمیشہ یہی چیز دیکھا ہے کہ ان کے اندر سیکھنے کا بہت ہی شوق ہے سر. اور کہیں نہ کہیں ہمارے بچے جو ہے جو ہمارا لوکل لینگویج جو ہے وہ کہیں نہ کہیں بھول چکے ہیں سر. اور آپ سبھی شخصیت کی وجہ سے آج ہمارا جو لینگویج جو ہے وہ آج زندہ ہے. اور اس لینگویج کو آگے زندہ رکھنے کے لیے میں آپ سبھی لوگوں کا اور شکریہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری اس لینگویج کو جو ہے آنے والے وقت میں اور زندہ آپ لوگ رکھیے. اور یہی سے میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. والسلام علیکم, شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی اس نہایت اہم اس تقریب کے مہمان خصوصی اور مسند صدارت کے آس پاس میں بیٹھے ہوئے دیگر مہمانان, علاقے پوری یعنی کرگل کے میدان ادب کے دگج شعراء و ادباء اور دیگر حاضرین, السلام علیکم. وعلیکم السلام. وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے زیادہ کچھ نہیں بولوں گا, کیونکہ آج کی اس تقریب کی مناسبت سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں شینا زبان کے لیے میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ شینا زبان و ادب کے لیے اور ایک سنگ میل جو ہے وہ طے ہوا ہے. بہت کام ہوا ہے, ہو رہا ہے. شینا ادب کا جہاں تک سوال ہے, اس میں کام کرنے والوں کی بہت قلت تھی.
कम काम करने वाले लोग थे। और यासीन अंसारी उन इब्तिदाई चंद शुरा में से हैं जिन्होंने अपना कलम उठाकर इस मैदान अदब का कारवां को आगे बढ़ाने में उन्होंने जद्दोजहद की, और आज उनकी वो जद्दोजहद जो है वो काम आई, और इस अदब के लिए, ज़बान के बोलने वालों के लिए एक तोहफा उन्होंने पेश किया है। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, उनको दिल की गहराइयों से मैं अपनी जानिब से, हमारे शिना राइटर्स एसोसिएशन की जानिब से, हमारे कारगिल के तमाम। इसके बाद बिलादमहीद मैं स्टेज पे बुलाना चाहूँगा चीफ मेडिकल ऑफिसर कारगिल डॉक्टर लियाकत अली साहब। प्लीज कम ऑन द डायस एंड एक्सप्रेस योर वैल्यूएबल सजेशंस। Honorable Chairman, Chief Executive Councillor Dr. Jafar Ahmed साहब, Honorable Councillor Asad साहब, बाकी आज के मेहमान नहीं को माशा जिनके लिए जिसके लिए तकरीब है आज यासीन अंसारी साहब, बाकी तकरीब के बहुत जो नामों शुरा भी यहाँ पे मौजूद हैं, और ख़वातीन हज़रात सबको अस्सलाम वालेकुम वजूले। वैसे हम लोग एक ऐसे प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ से लिटरेचर का कोई रिश्ता होता नहीं है आमतौर पर, लिटरेचर से हम लोग बहुत दूर हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे डिपार्टमेंट के एक लड़के ने, यासीन अंसारी साहब ने, जो एक सीनियर फार्मासिस्ट है, तो उन्होंने ये जुर्रत की है कि किताबें लिख डालें, और शायरी तो ऐसे ही शुरू से करते रहे हैं। सबसे पहले दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि शायर और ये लिटरेरी लोग बहुत मेहनती जफाकश होते हैं, और किताब लिखना, शायरी करना इतना आसान नहीं है। उसके लिए मेहनत चाहिए, उसके लिए वक्त चाहिए, और उसके लिए नॉलेज चाहिए। एक बहुत ही कठिन काम है। हम लोग तो शायद एक दो लफ्ज़ नहीं लिख पाएंगे शायरी में या किताब लिखना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन इस मुश्किल काम को इसने सर अंजाम दिया, और आज ऑनरेबल चेयरमैन के हाथ में हमने एक किताब का तकरीब रस्म इजरा के लिए ख्वाहिशात आपके साथ हैं, और एक बार फिर से मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत ही बड़ा, और इन चीज़ों के लिए ज़रूरी है ये किताबें, यही रहेंगे आगे, जनरेशन चलेगा हमारा एक्चुअल सकाफत क्या कल्चर का। तो इन बातों के साथ मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मिस्टर अल्ताफ हुसैन साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप स्टेज पे आए और आज इस रस्म इजरा तकरीब के सिलसिले में चंद अल्फाज कहें। शुक्रिया। ऑनरेबल चीफ गेस्ट डॉक्टर आबू जाफर साहब, ऑनरेबल गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर लाकत साहब, और यहाँ पर मौजूद शोरा और दीगर साहिबान, अस्सलाम वालेकुम। और सबसे पहले तो मैं अंसारी साहब को दिल की उम्मीद गहराइयों से मुबारकबाद कहना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने चिना ज़बान पे पहले से ही काम करते आ रहे थे, तो आज अपने अशार, अपने लफ्ज़ों को एक किताबी शक्ल में उन्होंने अंजाम दिया है। उसका मैं बहुत तहदिल से शुक्रगुज़ार हूँ आपका, क्योंकि आप हमेशा इस फील्ड में, चाहे वो फेसबुक हो चाहे वो ट्विटर, आप हर जगह इस पे काम कर रहे थे। तो अब आपने अपने इस कलाम को किताबी जामा पहनाया है, उसका हम आपको शुक्रगुज़ार करते हैं। और मैं अपनी तरफ से अंसारी साहब को इसके लिए मैं अपनी तरफ से रुपया 20,000 का इनाम देता हूँ अंसारी साहब का हौसला अफजाई के लिए। बाकी ऑनरेबल सीसी साहब का भी मैं शुक्रगुज़ार करता हूँ, क्योंकि वो यहाँ पर आए अपनी मसरूफियात के बाद। तो बाकी ज़्यादा नहीं कहते हुए अपने कलाम को मैं यही पूरा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज किताबी शक्ल में हमारे सामने मौजूद है। बिला तमहीद मैं आज के मेहमान खुसूसी चेयरमैन चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर लद्दाख गार्डन सेटलमेंट काउंसिल कारगिल डॉक्टर जाफर साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप स्टेज पे आए और आज इस दिन की मुनासबत से जो है अपने ज़रिए ख्याल पेश करियर ये नहीं था। अब अल्लाह के फजल का जहाँ भी जाए मतलब उनको समझा सकते हैं कि इस तरह से मसला है ज़िक्र। और अल्लाह की फजल से मुझे उम्मीद है जब सरकारी ज़बान डिक्लेयर होगा कम से कम हमारा त्रुटि और गलती आना चाहिए। और हमने कहा शिना और दर्दी को सेकंड सरकारी उसके लैंग्वेज के हिसाब से रखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जगहों का हमने एग्जाम्पल दिया जहाँ पे 2 से या 3 से ज़्यादा लैंग्वेज है ज़रकन।
और हमने ये कहा कि उर्दू मती मादरी लैंग्वेज मेन जरखान को कौन दो चुचू से बाकी उर्दू हम सब बोलते हैं नरेज नंगतकामस उर्दू हमारे लिए एक मीठा ज़बान है और उसको तो हम बुला भी नहीं सकते अजर पागे उर्दू का हमारे ऊपर बड़ा एहसान है जो भी हमारा अदब का बात हो गया उसका स्क्रिप्ट तो उर्दू या हमारा अरबी उससे आया है छाने इंशाल्लाह देगा नजर उसमें आपके हमारे जो कलमकार है हमारे शोरा हजरात है जो हमारे अदीब है उन्होंने हमें बहुत नजा मुफस्सल से उस पर ये करने की कोशिश की तक हमें बहुत बहुत शुक्रगुजार बाकी देंगे कि अंसारी साहिदी किताब को इजरा करने का देखिए कोई किताब बता दो ये हिस्ट्री में इसका ये रह जाता है वरना उम्मीद अंसारी साहिदी शायद आपने किसी अच्छे उनसे इस्लाह कराया होगा जब अता दे बचाव आसान नहीं मगर उस पर कहाँ पे साफ करना है किसको बदला में क्या होना चाहिए कतार में क्या होना चाहिए मक्ता क्या होना चाहिए दरखन को उसमें या बाकी चीज़ों में भी आपका जो लिखना है गामा का अगर कोई गसु दरखन को ना में जो किसी अच्छे आपके जो हमारे अदीब है चाहे हमारे शिना ज़बान के या नाती उर्दू हो या नाती बस्ती हो या नाती कुर्गी हो उनसे बहुत सारों से आपने हो सकता मशवरा किया हो उम्मीद है नता सब पसंद नता न वगैरह नती मनसा कचे ना तो सुस्वर किया करते मतलब ये जब हम लिखते हैं लेकिन हमको अपना खामी नज़र नहीं आते खामी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म बचाव बहुत ज़रूरी है और उसमें इस्लाह करना बहुत ज़रूरी है जहाँ पे हम जो क्रिटिसाइज वर्जन में देना बहुत कुछ शौरा ऐसे होते हैं मन चम में चीज़ें न कर जरूरत ना समय मतलब जिसका न सर होता है न पैर होता है तो उसमें हमको सबको सोचने की ज़रूरत है जब आप लिखते हैं ना उसको किसी अच्छे जो हमारे पास ऐसे कलमकार ऐसे शोरा ऐसे अदीब हमारे पास आज के दिन में है ये हमारे लिए सरमाया है नतीज का सरमाया इंशाल्लाह बाकी हिल कौंसल जनता नियम को हमेशा आपका और अभी हम उस पर आपके इस पे भी कल्चरल एकेडमी पे भी काम कर रहे हैं इंशाल्लाह देसी नती बल्कि कुछ प्रोग्राम भी रख रहे हैं जिससे फेस्टिवल वगैरह के नाम से या इसका भी दे दी करना चलता होगा इंशाल्लाह देसी योग में 2025-26 में आप लोग कोई प्रोग्राम से डायरेक्ट कौंसल से हम पैसे डायरेक्ट नहीं दे सकते और कल्चरल एकेडमी या इंफॉर्मेशन के थ्रू न चलता 5 लाख इस आज इस अपने यासीन के जो बुक इजरा के उस पर मैं आप सब के बीच में 5 लाख देता हूँ मेहरबानी वो आप लोग जहाँ भी आप लोग खर्चा करें फंड सारे मेहरबानी 2025-26 यूँ में जनता बता दिया ना फंड से कमीशों से फिर अब तो अल्लाह के शुक्र है देव बहुत हमने कोशिश करते रेडियो में यहाँ बाकी चीज़ बोलने का नहीं है मगर खुदा बेहतर जानता है हम हर फील्ड में कुछ न कुछ काम कर रहे हैं और जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं जमीन को साथ योजना का तो आपको कोई कुछ बोले कुछ फर्क नहीं आज आपका जुजला देखिए जुजला को हमने कोशिश किया है से ज़्यादा जब एवलाज नाती शरुद मार्च से ही शुरू होता है या 20 फरवरी से और हमारा उम्मीद है हम 20 फरवरी तक कम से कम जुजला को खुला रखें जब जहनी तौर कम से कम दे रहे हैं जो तो बहुत सारे काम आप लोग को इंशाल्लाह छोटे ही से या बाकी प्रोजेक्ट्स का ले लीजिए इंशाल्लाह एक अगले 1 साल में आपको लगेगा कि हमारे कौंसल में या तो हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं या पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं आप लोगों को इंशाल्लाह पता चलेगा चलो लड़सी पूरे इसलिए मुझे उम्मीद है हमारे पूरे कौंसल हमारे पूरे काउंसलर्स अपने अपने हल्के में हो या कभी के डेवलपमेंट के लिए जनता यकीन उनसे हम वहाँ जाके चलो ले सोच से या एलजी के साथ या आपके हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी एडवाइजर के साथ कितना हम फाइट करके फंड लाते हैं कोई चीज़ दीदी चलो मुझसे बेहतर तो उसको और जनता पता नता हमारे कंपिटिटर बहुत है नता देगा
हमारा दिन ज़बरदस्ती मतलब कोशिश बस में तो कोई चीज़ आने वाला नहीं है। बेफियामस खास कर ऑनरेबल एलजी साहब बहुत मशहूर कुछ हमेशा पूरी कीमती वक्त करना है वक़्त की से यहाँ पे कुछ दिन के लिए से हो सकता है उसमें बहुत सारे लोग आके डॉक्टर जाफर के खिलाफ करते होंगे, क्रिटिसाइज करते होंगे, मगर ओवरऑल तो पब्लिक का फ़ायदा तो होता है। मिसाल कोई उससे लर्ज चूजर न कर तो चिंगीज़ के खिलाफ जो नजर 8-10 तो हमारे पब्लिक का काम निकल जाते हैं। और आप लोगों ने देखा होगा पिछले 1 साल में वो ज़्यादा टाइम के लिए यहाँ बैठे हैं और उसका करगिल वालों के तय एक पॉजिटिव अप्रोच है। हो सकता है कुछ उसमें उनके जो नीचे ऑफिसर्स है उसमें से 1-2 हम जानते हैं थोड़ा सा लाल से काम लेते हैं और ओवरऑल इंशाल्लाह नबी फ्यूचर बहुत बहुत आपको मुबारकबाद हमारे हेल्थ काउंसिल की तरफ से और अपने तरफ से, क्योंकि मोहम्मद अंसारी साहब में जब हेल्थ में था मेरा बहुत अच्छा एक कुलीग भी रहा है हमारे हेल्थ सिस्टम में सीनियर फार्मासिस्ट के तौर पर, इनका उसमें भी बड़ा अच्छा डेडिकेशन रहता है। और डॉक्टर लियाकत ने सच कहा कि मेडिकल वालों को लिखने का फुर्सत वगैरह होता नहीं, तो इसलिए मैंने कहा कि आप लोगों को जो लिखता है वो उस पर अच्छा करके 1-2 बार इस्लाह करवा के फिर ये इसमें लाना चाहिए। तो फिर एक बार आप सबों का जो यहाँ पे इतने भी शायद यहाँ पे बैठे तक बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। ऑर्गेनाइजेशन जो कि गैर सरकारी तंजीम है उनकी जानिब से हमारे यासीन अंसारी साहब को एक मोमेंटो प्रेजेंट किया गया है। आई रिक्वेस्ट प्लीज would the chief guest Dr. Jafar साहब to kindly be seen and give the prizes. मैं फाउंडर जो है यहाँ पे कोई पाया है, मैं सीसी साहब से फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो है ये होटल तस्मी तरफ से जो है 30,000 रुपये का यहाँ पे इनाम दिया गया है। इस सफर का जो है आप अपने तफसील से हमारे सामान्य रहीम चीफ गेस्ट सीसी डॉक्टर मोहम्मद जाफर आखुन साहब, गेस्ट ऑफ ऑनर हमारे इस्तीमो साहब डॉक्टर लियाकत साहब, आप ये अल्ताफ साहब, हमारे अनवकी का यहीं से डॉक्टर, यहीं से इंजीनियर, यहीं से नेता निकलेंगे। तो अभी हमारे सीसी साहब ने भी बोला हमारे आने वाले बच्चों को भी इसमें जो है योगदान देना चाहिए। हमने ये किताब लिखा ताकि मेरे आने वाले नस्ल तक ये मेरा पैगाम रहे, क्योंकि हम तो रहे नहीं रहे इंसान ये पानी वाले हैं। दिल तंग नहीं है मेरा गुंजाइश बहुत है, दिल तंग नहीं है मेरा गुंजाइश बहुत है, इस मुख्तसर हयात में ख्वाहिश बहुत है। ए मौत के फरिश्ते जरा देर ठहर जा, ए मौत के फरिश्ते जरा देर ठहर जा, अंसारी के मन में अभी ख्वाहिश बहुत है, अंसारी के मन में अभी ख्वाहिश बहुत है। इस वक्त जनाब मेरा 2 किताब आपके किताब भी बिल्कुल ये शाया होकर जिंदगी पहुंच गया है, अभी काम करेगा। इसके अलावा भी मेरा 2 किताबों पर 50% काम हो चुका है, अभी और 2 किताबें आने वाला है और एक किताब जो वो मेरे रिटायरमेंट के बाद आएगा, क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत ये को ये रखे सलामत। और मैं हमारे इन शोरा हज़रत निहायत ममनून मशकूर हूँ सर, ये जो बुजुर्ग शोरा ये हमेशा मेरा साथ देते, क्योंकि हम ये शोरे में कभी उतार नीचे होते रहते हैं हमारे ग्रुप में ये, लेकिन हर लम्हा इन सीनियरों ने मुझे बहुत काफ़ी ये मदद किया। तो मैं अभी जितने भी हमारे शोरा हज़रात तो कोई भी हमारी यही कोशिश है सर कि हमारा ज़बान, तो हमारा ज़बान एक शिनाख्त है। तो मेरे मिशन अंसारी में सबसे प्रायोरिटी है तालीम के लिए सर, इसके बाद मेरा प्रायोरिटी है सर ज़बान, और तीसरा मेरा प्रायोरिटी है सर हुब्बुल वतनी, हमने वतन के टाइम वफादार रहना। और आज इसमें मैं से जो मुझे फख्र है शीना का लक़ब दिया मेरे गिलगित बल्तिस्तान के शीना बरादरी का, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारी शीना गिलगित बल्तिस्तान। और उसमें मेरे बल्तियों ने भी मेरा भरपूर साथ दिया, क्योंकि इन सब का नाम लेना तो मेरे पास अभी टाइम कम है। तो इन सारों की ताउन से आज इसमें मुकाम पे पहुँचा। और मैं बिलखुसूस हमारे मीडिया हज़ारत और हमारे कल्चर अकेडमी
के जो डायरेक्टर है नजीर साहब ने भी मुझे फ़ोन कर ये मुबारकबाद दी। और एक अहम बात ये है कि हमारे लद्दाख के MP साहब हाजी मोहम्मद खलीफा जान साहब को भी मैंने दावत रखा था। कल रात को फ़ोन करके उसने मुझे मुबारकबादी दिया, तो उसको एक इम्पॉर्टेंट काम पे दिल्ली जाना हुआ वापसी पर। तो बहुत सारे हस्तियों ने मुझे दिल खोल के मुबारकबाद दी, दिल खोल के मेरी हौसला अफजाई की। और बिलखुसूस मैं हमारे CC साहब और हमारे सीमो साहब और बाकी हजरात का मैं निहायत ममनून मशकूर हूँ। हमारे CC साहब इतने मशहूर थे, आज के 26 जनवरी की प्रोग्राम्स भी है, इसने मेरे लिए किस तरह होकर निकाल के वापस ले से ये रातों रात इधर पहुँच के मेरा यहाँ पर इस तकरीब को रोना पड़ता। मैं CC साहब का निहायत मशहूर और ममनून हूँ। और दूसरा CC साहब ने हमें जो अभी काफ़ी पैसे का ऐलान किया, इंशाल्लाह हम CC साहब से ये पैसा लाएंगे। इंशाल्लाह हम अपनी मसरूफियात हमारे शोरा हज़रात हम सब मिल के इसको अपने कौम के लिए खर्चा करेंगे। और ये हमारे अल्ताफ़ साहब और इनका साहब मैं शुक्रगुज़ार हूँ। और बाकी तमाम हज़रात का बिलखुसूस इन बच्चियों का, आरिफ साहब का और हमारे ये जो है और बंदा से कहीं बोलने में करते मोहम्मद हमारा ये जो इस वक्त हमारे ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ अल्ताफ मोहम्मद का। और हमने इसने ये जो है बिल्कुल हमारा शाना साथ किया। बहुत सारे ये प्रोग्राम करते हैं हमारे इलाके में। अभी हमारे काउंसिल के अंदर भी इसने बहुत काम किया है, मोहम्मद के इलाके में भी काम किया है। और इसके अलावा जो है आउट ऑफ ब्लॉक भी ये जो है अच्छा खासा काम कर रहा है। मैं आप लोग का फिर एक बार हंसते दिल जो है मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मेहरबानी व अस्सलाम वालेकुम। हमेशा यही कहना है, सबसे तो पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे जो कारगिल की जो मीडिया पर्सन है, तो सबसे इनका बहुत एक बड़ा अहम रोल ये है कि वो हमेशा जो अच्छाई चीज़ें हुए उनको समाज के सामने लाते हैं। लेकिन अभी बाकी दुनिया में हम जब मीडिया पर्सन को देखते हैं, वो ऐसी चीज़ों को ज़्यादा आगे लाते हैं जो बुराई होती है। आज उधर चोरी का उसने किया, उसने वो किया। लेकिन मैं हंसते दिल हमारे लद्दाख बिलखुसूस करगिल के मीडिया पर्सन का जो है मैं जितनी तारीफ कम जी के हमेशा हमारी ज़बान के बारे में हो, हमारे सियासी हो, हमारे सारे मसाइल ये हमेशा आगे लाके फर्स्ट प्रायोरिटी दे के दुनिया तक पहुँचाते हैं। हमारा जनाब अभी देखो मैंने ये 2 किताबें निकाला। एक किताब जो है अभी मेरा जो है खत्ते में जो है लद्दाख में शीना की आमद अभी इस वक्त तैयार होके है। तो इसके अलावा भी मैंने 2 किताबों पर और मज़ीद काम कर रहा हूँ। तो मेरी फर्स्ट कोशिश यही है सर, मैं अभी आप लोग तो मेरे साथ अक्सर जुड़े हुए मेरे यूट्यूब चैनल मिशन अंसारी, मेरा यही प्रायोरिटी है सर कि हमारी ज़बान को ज़िंदा रखे। क्योंकि आजकल हम देखो एज में राइटर ये देख रहा हूँ, यहाँ अगर कहीं भी हम प्रोग्राम करते हैं आजकल के नौजवान जो है वो अंग्रेज़ी में उसको ये करके लिख के लाते हैं। अपनी अभी हमारा यह बल्ती है, पुरकी है, शीना है, उस सिक्री में कोई भी आज की नया जो जनरेशन जो है वो लिखता ही नहीं है, उसको अंग्रेज़ी में कन्वर्ट करके लिखते हैं। तो अभी हमारा कोशिश यही हम इस तरह से किताबें लिखेंगे हमारे आने वाले कौम के लिए असासा बन जाए। अभी हमारा शीना जब ये होगा तो हमारे शीन के लिए असासा होगा। हमारे बल्ती लिखेंगे तो बल्ती कौम को इस्तिफादा होगा, पुरकी होगा तो पुरकी कौम को इस्तिफादा होगा। तो हमारा मेन कोशिश यही है सर मेरा कि हमारी ज़बान को जो है बढ़ावा देने के लिए वाहिद रास्ता यही है कि अपने इसमें किताबें लिखना, ताकि इससे हमारे आने वाले जनरेशन के लिए एक असासा रहे और ये हमारे जो अल्फाज है वो जिंदा रहे। अदरवाइज अभी हमारी ज़बानों में ज़्यादातर दूसरे ज़बानें जो है वो हावी हो रहे हैं। सर बाय प्रोफेशन आप एक फार्मासिस्ट है और बुक लॉन्च करते वक्त आपको किन किन ऑर्गेनाइजेशन का आपको यहाँ पे ताउन रहा है? देखो सर अभी एक तो हमारा ये ह्यूमस ऑर्गेनाइजेशन ने जो आज ये प्रोग्राम जो है इसको ऑर्गेनाइज किया। इसके अलावा जनाब मेरे लिए बहुत सारे जो है इस वक्त यहाँ देखो अभी होटल एसोसिएशन का भी देखा, बहुत सारे चीज है। मुझे ज्यादातर ताउन जो है ये गिलगित मीडिया नेटवर्क में विद इन 24 आवर्स 72 लाख लोगों ने उसको देखा और 500 से ज्यादा लोगों ने शेयर किया। मेरे बहुत सारे जो है कलाम है इनको लोग पसंद करते हैं, मैं इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं अभी इससे मेरा हौसला अफजाई हो गया। आज मेरे 3 किताबें यहाँ में लिख चुका हूँ, अभी मेरे 2 किताबों पर काम हो रहा है। मेरा इंशाल्लाह सर यही फोकस रहेगा, ज्यादा से ज्यादा हमारी जबान हमारे लोकल जबानों को हमें बढ़ावा देने के लिए हम सारे शोरा हज़ार जो है वो मिलकर कोशिश करेंगे। जिस तरह आपके बज़्म शीना और कलाम अंसारी सर बुक रिलीज हो गया आज, पहले तो लोग आपको सिर्फ सोशल मीडिया से जानते थे, सही सर, जो कल्चर एकेडमी में मुशायरे की कभी आपको
आज तो आपकी दो किताब की वजह से लोग काफी आपको जानने लगेंगे, जो आपको नहीं जानते थे वो भी। तो इन 2 किताबों को शायद करने वालों को कितना मुश्किलों का सामना करना है। देखो सर, मैंने अभी पहले भी बोला सर, मैंने 16 साल की उम्र में ये काम में शौक था तो ये, लेकिन उस वक्त सर हमारे पास ठीक तरह कलम ईजाद नहीं था स्याही का, तो वो इतना दुश्वारियों से मुझे। और दूसरा सर आपको बखूबी है, हमारा शीना जमान का जो है वो हमारे पास सिक्री पेजान नहीं था। बड़ी मुश्किल से हमारा मखसूद सामो साहब का हम शुक्रगुजार हैं, जो गुरेज से ताल्लुक़ रखते हैं, वो एक जो है ये डिविजनल कमिश्नर भी रह चुके हैं। उन्होंने जब हमारे शीना स्क्रिप्ट ईजाद किया तो हमारे शीना बरादरी को उससे काफ़ी इस्तिफादा हुआ। लेकिन मैंने वहाँ से ये शुरू किया, कभी मैंने हिम्मत नहीं हारा सर। कभी मुझे ये एफिशिएट भी होता था, कभी नुक्ते चीनी भी होती है, शायरी शेर में होते रहता है, लेकिन कभी मैंने हौसला नहीं हारा। आज इस मुकाम पर पहुंचा हूं सर, और मैं ज़्यादातर नासिर साहब का शुक्रगुजार हूं कि इससे भी पहले भी, और आज हमारे यहाँ पर मौजूद नहीं हमारा इसाक साहब, इसने मुझे फर्स्ट प्रायोरिटी पर ये किया था गुलिस्तान में। तो हमें ज़्यादातर हमें हमारे मीडिया पर्सन की वजह से मैं काफ़ी मेरी मकबूलियत हुई अल्हम्दुलिल्लाह। मैं यही जो है इंशाल्लाह जब तक हमारे ये जान रहेगी तो मैं ये कोशिश जारी व सारी रखूँगा सर।